So today we'll talk about input function. Input function is used, in case you want to get entry from the end user, or you ask end user for some input. So what is the option or what is the function you will be using to get that entry from the end user? अगर आप end user से कोई entry लेंगे तो आप उसको एक message भी display कराएंगे and you give them some space to write something, right? So वो स्पेस आप यूजर को कैसे देंगे, एंड जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं टू गेट दैट एंट्री क्वाइट ऑब्वियस रिलेटेड टू समथिंग. सो आप पहले उसको बताएंगे कि आपको क्या एंटर करना है, जो भी आपका मैसेज होगा टू गेट दैट एंट्री, हाउ टू डिस्प्ले दैट and how assign a particular block to the end user so that they can write something. So for that part we will be using a input function. So how to use that? Let's say when we create a variable, so this is the name of your variable. Let's say I'm giving a name, just using a name only, and this is the name you want to write. Let's say data is the name, and you simply run it, and when you call name you will get the output. Now you don't want to give the data by yourself, you want, or you want to ask from the user to give this input. So how you will ask that? Let's say I'm just using name1 and the input function here, and here you will be having a display message which you want to display. So please enter your name, or it can be anything, right? So you simply run it, एंड जब आप इसे रन करेंगे तो एक ब्लॉक आपको देगा विद दैट मैसेज, एंड इनटू दैट ब्लॉक यू कैन राइट अ कोड. सो हाउ इट विल वर्क? Let me start my kernel. It take a bit some time to get, because we people are working on local host. So here is the block and this is your display message. आप इस पर्टिकुलर कोर्स में आप जो भी देंगे वो आपका यहाँ बिफोर दिस ब्लॉक विजिबल हो जाएगा. Why we have used this space here? अगर आप ये स्पेस यहाँ यूज नहीं करेंगे तो ये जो ब्लॉक है और जो आपका डिस्प्ले मैसेज है, they would be quite congested. So it doesn't looks good. Just for the representation purpose I have used this space. आप नहीं भी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो आप यहाँ पे नाम एंटर करा देंगे. It can be anything. Let's say I'm using Python here, right? And you simply run it. So name1 जो आपका वेरिएबल है, name1 वेरिएबल में आपने जो एंट्री ली है वो एंड यूजर से ली है. अभी पहले आपने जो डेटा यहाँ पास किया था that was done by you, and here you have asked user to enter their name or to enter something. So here input function आपका एंड यूजर को एक ब्लॉक असाइन करेगा जिसमें वो अपना एंट्री पास कर सकता है, एंड दैट विल बी स्टोर टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. नाउ विल टॉक अबाउट कि जो आपका इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन से आप जो एंट्री एंड यूजर से लेते हैं उसका डेटा टाइप क्या होता है. हियर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो आपका नेम वेरिएबल है उसका डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग है. लेट इट चेक type and the name variable, and the data type is a string, and same we'll be talking about. And for the name one, this is also a string. तो आपको एक चीज समझ में यहाँ आ जाती है कि जो आपका इनपुट फंक्शन है वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है. इनपुट फंक्शन में जो भी आप एंट्री करेंगे, जो भी आप डिस्प्ले मैसेज के बाद जो भी आप वैल्यू पास करते हैं, दैट्स अ स्ट्रिंग. Let's check with a different case. Let's say I'm writing age equals to input function, because I would ask it from the end user, enter your name, name age, enter your age. So here I am asking about the age, and age is a numeric value. So let's say you write this and you run it, and when you call age variable, you'll get the output. So you see the codes
around 25. So that's a string. You can check it from type function as well to make sure that is a string. So is it possible कि आप जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल एंटर कराते हैं एंड यूजर से, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एज इज योर वेरिएबल एंड दैट इज न्यूमेरिक and might be you are storing that value to a specific structure or a database where आपकी जो भी एंट्रीज वहां जाएंगी वो डिफॉल्ट आपकी स्ट्रिंग है. सो यू हैव टू यू नीड समथिंग विच इज न्यूमेरिक. तो आप उस केस में एंट्री जो लेंगे जिनमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आई वांट समथिंग न्यूमेरिक. क्योंकि आप यहाँ देखिए, आप एज 1 में वो कुछ ऐसा भी तो कर सकता है. अगर आपका इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ले रहा है, हमने दिया उसको एंटर योर एज. सो आपको क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, आपने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई है कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं. आई एम राइटिंग पाइथन हियर एज वेल एंड ये आपका इसको एक्सेप्ट कर लेगा. आप एज 1 को कॉल कराएंगे, दैट इज पाइथन. सो एज 1 जिसमें कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए थी, उसने आपको स्ट्रिंग पास करने दिया एंड दैट इज द स्ट्रिंग. सो उस केस में आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जब मुझे न्यूमेरिक एंट्री चाहिए तो सिर्फ न्यूमेरिक ही आए. डिफॉल्ट तो आपका इनपुट कैरेक्टर लेता है. अगर आपको न्यूमेरिक चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, सो वी हैव दैट पर्टिकुलर let me new age is the variable. We have that option available as well. So outside the input function, enter your age will restrict the user to get entry for the integer value only here. So इस केस में अगर आप कैरेक्टर पास करेंगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा. You check it. Once you run it, let's say you are passing some character value, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा. That's a value error. आप इस केस में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही पास कर सकते हैं क्योंकि आपने बाहर एज अ इंट दिया है. You need an integer only. So here you pass something like this. So that is there into this particular variable. So now you understand the difference between input and input. default आपका string लेता है. अगर आपको numeric value चाहिए तो आपको input function के बाहर int या float use करना पड़ेगा. So integer आप बाहर as a input के बाहर अगर आप int use करेंगे तो उस केस में वो character entry आपको लेने ही नहीं देगा. We can handle that using error handling as well. We'll talk about that part later. So उस केस में आप उसे int फंक्शन यूज करके सिर्फ इनपुट न्यूमेरिक लेने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. अब एक और केस देखिए कि लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया अबाउट नाम से एंड हम सिर्फ कैरेक्टर एंट्री ले रहे हैं. एंटर अबाउट योरसेल्फ, राइट, एंड यू रन इट एंड हियर यूजर इज राइटिंग I'm a data scientist, right, like this. So आप यहाँ पे स्पेस देंगे इस ब्लॉक को थोड़ा सा आपके मैसेज से अलग दिखाने के लिए. आप यहाँ स्पेस ले लेंगे तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा. तो इस स्पेस की वजह से आपका जो ब्लॉक है और जो मैसेज है ये दोनों सेपरेटेड हो जाएंगे, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे. तो इस केस में आपका जो हमने इनपुट फंक्शन में एंट्री जो हम यूजर से लेना चाहते हैं वो है एंटर अबाउट योर सेल्फ. तो उसमें वो कोई भी वैल्यू पास करता है तो पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है. अगर कोई स्ट्रिंग पास करता है एंड यू वांट दैट स्ट्रिंग टू बी स्टोर एज अपर केसेस और आपको लेट्स से इस अबाउट वेरिएबल को किसी डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो आप उसे सिर्फ लोअर केसेस में चाहते हैं या फिर अपर केसेस में चाहते हैं, तो आप उसको एंड यूजर को भी बोल सकते हैं कि प्लीज एंटर समथिंग इन कैपिटल लेटर और प्लीज एंटर समथिंग इन लोअर केसेस और फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्ट इन स्मॉल. आप ऐसा एंड यूजर को भी लिख सकते हैं. बट आप लिखते हैं फिर भी ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपके बेस्ड ऑन योर मैसेज एंड यूजर जो आप कह रहे हैं वैसा ही लिखेगा. माइट बी इंटेंशनली और गलती से उससे आप चाहते थे अपर केसेस और उससे लोअर केस में एंटर हो जाती है वैल्यू. तो लेट्स से यहाँ पे लिखा आपने कोडर एंड ये जो कोडर था आपको अपर केसेस में चाहिए था एंड दैट यू हैव स्टोर टू दी अबाउट. अब
फर्दर आप अबाउट को कॉल कराते हैं, फिर आपको कोडर कैपिटल लेटर में मिल जाता है। एंड एक और केस है जिसमें आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्ट इन स्मॉल मिल जाता है। तो वो तीनों आप जब कोडर से लेट्स से इस वेरिएबल में वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो दैट विल बी 3 सेपरेट रिकॉर्ड्स, वन इज इन कैपिटल लेटर, वन इज इन स्मॉल एंड वन इज इन कैपिटलाइज फॉर्म। ये कोडर आपका 3 तरीके से हो सकता है, लाइक दिस एज वेल and like this as well and a capitalize as well। ये तीनों सेपरेट रिकॉर्ड है फॉर पाइथन। आपको जो भी केसेस चाहिए, आप पहले ही जब आप एंड यूजर से एंट्री लोगे अपने लेवल पे उनको हैंडल कर लोगे। लाइक दिस, अबाउट इनपुट आपने एंट्री कराई, एंटर अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, और आप यहाँ डॉट अपर लगा दोगे, अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन क्या करेगा कि यूजर चाहे लोअर यूज करे, कैपिटलाइज यूज करे या फिर आपका अपर यूज करे, वो अपर में ही रहेगा आउटपुट आपका। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पे लेट्स से आपने स्मॉल केसेस में लिख दिया आई एम अ कोडर, यू रन इट, सो एंटर अबाउट योरसेल्फ, लेट्स से ये आपने इक्वल्स टू सिंबल ले दिया यहाँ, आई एम अ कोडर, ठीक है। आप जब इसे रन करेंगे तो यहाँ आपने अपर केसेस लगाया, इसको चेक करने के लिए आपको अबाउट वेरिएबल को कॉल कराना पड़ेगा, तब आपका ये अपर फंक्शन काम करेगा। यहाँ तो क्योंकि आपने इसको लिखा है, यू हैव रिटन इट, तो ये जैसा आप लिखेंगे वैसे विजिबल होगा। बट ये जो अपर फंक्शन के बाद जो भी आपके इस कोड में चेंजेस होंगे वो आपको कब विजिबल होंगे, जब आप इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो आपने अबाउट इस वेरिएबल को कॉल कराएंगे, आपने अबाउट को कॉल कराया, दैट इज आई एम अ कोडर। सो लेट्स से अबाउट वन से एक और बनाते हैं, अबाउट वन, एंड इसमें हम लोअर केसेस यूज करेंगे, इनपुट एंटर समथिंग समथिंग, ठीक है, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं लोअर केसेस। सो यू रन इट एंड आपने यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दिया है कुछ डेटा लाइक दिस। सो जब आप अबाउट वन को कॉल कराएंगे एंड यू विल सी के लोअर फंक्शन की वजह से आपका जो डेटा कैप्स में था दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोअर केसेस। सेम आपके पास एक दूसरा केस भी है, अबाउट वन वन हम ले लेते हैं एंड इनपुट, एंड हियर यू विल बी यूजिंग अ कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट इन स्मॉल, कैपिटलाइज, ठीक है। तो ये आपका, आप कुछ भी लिखते हैं, अबाउट 11 को कॉल कराएंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट इन स्मॉल, you notice it। So that is the use of capitalize upper and lower while you are getting entry from the end user। एक और स्टेप फंक्शन आप देख लेंगे, let's say ABC नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया एंड इनपुट फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे एंटर समथिंग एंड आप यहाँ कुछ एंटर कराते हैं, तो आपसे इंटेंशनली और आपने जानबूझ के यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस इंसर्ट कर दिए एंड देन यू राइट डेटा, ठीक है। जब आप इसे कॉल कराएंगे एबीसी को, सो यू विल फील के जो डेटा है, एबीसी कीवर्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 4 होनी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ डेटा पास किया है। अगर आप यहाँ लेंथ फंक्शन को कॉल कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो उसकी लेंथ है वो 15 है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज स्पेसेस। You have to handle that space as well। अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि मुझे 0 इंडेक्स पे D मिलना चाहिए, बट यहाँ आपको क्या मिलेगा, स्पेसेस। So you have to handle those spaces as well। So to handle that part we have a step function। अब आप कितने भी स्पेसेस यहाँ देंगे वो सारे स्पेसेस को रिमूव कर देगा एंड लेंथ इज 4 only। क्लियर। सो इनपुट फंक्शन में आप अगर डिफॉल्ट आपका इनपुट स्ट्रिंग एंट्री देता है, स्ट्रिंग अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो सब टू यू कि आप स्पेसेस को रिमूव कराएं, आप उनको किस केसेस में लेना चाहते हैं उस एंट्री को, लोअर में, अपर में, कैपिटलाइज में, वो चेक करेंगे। बाकी और भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हमारे हैं, विल डिस्कस दोज लेटर।
अगर आप एंट्री न्यूमेरिक ले रहे हैं तो न्यूमेरिक के केस में आप इंट या फ्लोट यूज करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट वो करेक्टर लेता है. सो दैट्स द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन. You try it from your end. In case you are facing any problem, you write back to me. I'll come with next topic. Thank you guys.